So the sum is, what is the chance of getting at least one defective if 3 items are drawn randomly from a lot containing 6 items, of which 2 are defective. So there are total 6 items. Total there are 6 items, out of which defective items are 2. तो नॉन डिफेक्टिव आइटम्स कितने हुए? 4. अब उन्होंने बोला क्या है कि 3 आइटम सिलेक्ट करेंगे आप, एटलीस्ट एक तो डिफेक्टिव होना चाहिए. अब इसको करने के 2 तरीके मैं बताती हूँ. ओके, एटलीस्ट एक डिफेक्टिव होना चाहिए 3 के आइटम में. तो एक डिफेक्टिव है, एटलीस्ट एक है का मतलब क्या हुआ? एक है या फिर 2 है. तो एक डिफेक्टिव हुए तो 2 नॉन डिफेक्टिव हुए, और अगर 2 डिफेक्टिव हुए तो एक नॉन डिफेक्टिव हुआ. तो ये कैसे होगा? 2C1 इंटू 4C2, और अदरवाइज इट विल बी 2C2 इंटू 4C1. 2C1 का है 2 इंटू 4C2 is 6 plus 2C2 is 1, 4C1 is 4. This is 12 plus 4. Your answer is 16. So you can draw at least one defective in 16 ways, but we want to find out the probability. So in how many ways can we draw 3 items from 6 items? It can be done in 63. 63 will be 6 into 5 into 4 divided by 1 into 2 into 3. That is total 20 ways. So your probability will be 16 upon 20. This is one way of doing the sum. Another way is, उन्होंने बोला एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव होना चाहिए. तो मैं क्या बोलूंगी? डिफेक्टिव होना ही नहीं चाहिए, हम लोग कॉम्प्लीमेंट से काम करेंगे. They have asked us to find out at least 1 defective. So we'll first find out no defective at all. नो डिफेक्टिव एट ऑल मतलब 4 जो नॉन डिफेक्टिव आइटम है उसमें से 3 का सिलेक्शन होगा 4C3 वेज में. 4C3 दैट इज इन 4 वेज. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/20. ये हो गया नो इज नो डिफेक्टिव एट ऑल. तो नो डिफेक्टिव एट ऑल का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे हम लोग, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव मिल जाएगा. तो 1 minus 4/20 will give you 16/20. दिस इज मोर इजी. मैं हमेशा बोलूंगी कि जब वो लोग इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो आप अगर देखो सिर्फ एटलीस्ट 1 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो नन होता है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब पूछते हैं तो आप अगर कॉम्प्लीमेंट मेथड से करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा. यू विल डू इट फास्टर. से समथिंग 30 सेकेंड्स फास्टर भी काम चल जाता है. 30 सेकेंड्स यू सेव व्हेन यू डू इट बाय दिस मेथड. सो माय सजेशन इज कि अगर आपको कॉम्प्लीमेंट मेथड अच्छे से आ जाता है तो आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट मेथड करने की कोशिश किया करो. Then let us go to the next sum. The next sum in the sequence. Question 5. 4th आ गया है. हाँ. Okay. If 2 unbiased dice are rolled together, what is the probability of getting no difference of points? No difference of points means what? Same points. बराबर ना?
Yes, ma'am. You should have same point. No difference मतलब difference should be 0. So same points 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. 6 upon 36, that is 1 by 6. D is your answer. Then fifth one, if A, B and C are mutually exclusive, independent and exhaustive events, then what is the probability that they occur simultaneously? If they are exclusive, exhaustive and independent, तो they will never occur simultaneously. इसलिए तो exclusive है. देखो मैंने बोला था ना कि थियोरी है उसका प्रैक्टिकल सम आएगा. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैनॉट ऑकर साइमल्टेनियसली, ये है थियोरी और ये उसका प्रैक्टिकल सम आ गया. Next, there are 10 balls numbered 1 to 10 in a box. If one of them is selected at random, what is the probability that number printed on the ball would be an odd number greater than 4? In how many ways you can draw one ball from 10 balls? In 10 ways. तो डिनोमिनेटर तो 10 आ गया. ऑड नंबर ग्रेटर देन 4 क्या होता है? 5, 7, 7, 9. तो 3 by 10. 3 by 10 का आंसर क्या है? 0.3. Next sum. Following are wages of 8 workers in rupees. If one of the worker is selected at random, what is the probability that his wage would be lower than the average wage? पहले तो average wage निकालना पड़ेगा. So let us find out an average wage. $50 plus $62 plus $40 plus $70 plus $45 plus $56 plus $32 plus $45. टोटल कितना आता है? 400. 400 is divided by 8. तो 50 is the average wage. बराबर है? Yes, ma'am. अब what is the, if one worker is selected at random, what is the probability that his average his wage is lower than the average wage? तो 50 से lower कितने हैं यहाँ पे? 1, 2, 3 और 4. तो 4 में से 1 सिलेक्ट होगा 4 वेज में. टोटल 8 में से 1 सिलेक्ट होगा 8 वेज में. प्रोबेबिलिटी आएगी 4/8, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5. हमारे पास आंसर है क्या? 0.5. यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. ये किसी का डिफिकल्टी था. A, B and C are mutually exclusive. एक्सक्लूसिव मतलब क्या? तीनों भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर. एंड एग्जॉस्टिव. एग्जॉस्टिव का मतलब क्या? तीनों ही है रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम, इसके अलावा और कोई आउटकम नहीं है. सच दैट P of A is equals to 2P of B is equals to 3P of C. What is P of B? Very good. ये आके गया एग्जाम में. P of A is equals to 2P of B is equals to 3P of C. And you want to find out P of B. As they are mutually exclusive and exhaustive, I can say that this is also the same example कि theory को use करके practical sum solve करना है. Plus P of C is equals to 1. Because they are mutually exclusive and exhaustive, तो हम लोग ये लिख सकते हैं.
क्योंकि इनके अलावा और कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट में है नहीं और ये लोग एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करते हैं। हमको तो चाहिए P ऑफ B, तो P ऑफ A की जगह पे मैं लिखूंगी 2P ऑफ B प्लस P ऑफ B। अब P ऑफ C का क्या है? 2P of B is equals to P of C, 3P of C. Can I say probability of C is equal to 3 by 2 probability of B? Yes. हे दोघांना जर इक्वल केलं तर P of C काय येईल? सॉरी 2 by 3 येईल ते. मैम 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि उसके इक्वल टू में सी भी तो है। क्या लिख सकते हैं? जैसे आपने ए का लिखा ना 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वैसे सी का नहीं लिख सकते? नहीं ना, 2 डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी नहीं ऑफ लिख बी। सकते क्योंकि उनका रिलेशन देखो कैसा है। 2P of B is equals to 3P of C, ऐसा है ना रिलेशन। हाँ तो इन दोनों को अगर इक्वल किया और वो 3 को इधर डाल दिया तो P ऑफ C क्या आता है? 2 by 3 P ऑफ B। तो हम लोग उसको लिखेंगे 2 by 3 P of B is equals to 1। तो हमको मिलेगा 3P of B प्लस 2 by 3P of is equals to 1। तो आप इधर P of B को कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा 3 प्लस 2 by 3 is equals to 1। तो ये क्या आ जाएगा? 9 प्लस 2 11, 11 by 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना मैंने, इज इक्वल्स टू 1। तो P ऑफ B कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 3 by 11। तो आंसर है क्या देखो वहां पे? यस। वी कैन ऑलवेज राइट इट लाइक दिस। 3 प्लस 2 by 3, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 3 3 9 प्लस 2 11, 11 अपॉन डिनोमिनेटर 3, वो इधर जाके डिवाइड हुआ तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन की जगह पे, तो दैट विल बिकम 3 by 11। आर वी गेटिंग दिस? यस मैम।